Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is constitutional history of Pakistan. In this class we will talk about the constitution of 1956, 1962 and 1973, and we will draw comparison and contrast between the constitutions of all of them, right? So this way this class is going to be highly important. One, in general you will know about the constitutions and the constitutional development of Pakistan, right? You will also come to know about how the constitutions were framed, what were the reasons of the failures of the constitution, like 1956. What were the conditions or the causes of the failure of 1956 constitution, and what were the causes of the failure of 1962 constitution, right? And we will also talk about some other developments. As far as exam is concerned, so this topic is highly important because time and again this question is asked from 2016 and onwards. There you will come across a question on the constitutional history of Pakistan. Sometimes the examiner asks about the 1956 constitution. Sometimes they ask about the comparison and contrast between the 1956 and 1962, and sometimes they ask the contrast and comparison between 1962 and 1973, and sometimes they give you all of three constitutions and then tell you to talk about them, right? So these are some of the ways in which question is asked, and today's class will enable you in easy way to discuss the constitution of Pakistan easily, in simple way, and more exam oriented way, right? So before this I started the class, but unfortunately there was some internet connectivity issue which I resolved quickly. I hope after this we will not have any issue of the internet disconnectivity. So let's move on. Invite your friends, share this lecture in safe WhatsApp group, so that those who have not received the notification so far, they join us. So before starting the class, I am going to talk about the objectives resolution of 1949 given by the first Prime Minister, Mr. Liaquat Ali Khan, right? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन मीन करारदाद मकासद. तो ये क्यों बनाए गए? बनाए इसलिए गए ताकि आपने कंस्टिट्यूशन बनाना है, कंस्टिट्यूशन को फ्रेम करना है. उसके लिए लाजमी है कि आपके पास एक फ्रेम हो, एक ढांचा हो, कुछ मकासद हो जिसके ऊपर जो है ये एक ढांचा मौजूद हो, जिसके ऊपर आप एक इमारत खड़ी कर सकें. ठीक है, तो अब इसमें लिखता क्या है, कौन कौन से मकासद है जो हमने कंस्टिट्यूशनली हासिल करने हैं. एक चीज है सॉवरेनिटी. ठीक है. अब बाहर की दुनिया में देखा जाए तो कोई पार्लियामेंट को सॉवरेन कहता है, कोई जो है लोगों को सॉवरेन कहता है, पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है. ठीक है, अमेरिका में. अब पाकिस्तान में सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, कि अल्लाह जो है वही सॉवरेन अथॉरिटी है. सॉवरेनिटी किसी और के पास नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनली सॉवरेनिटी खुदा के पास है. ठीक है. अब खुदा इस सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कैसे करेगा? विद द पीपल विल एक्सरसाइज द सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह ऑन बिहाफ ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह की तरफ से ये जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इस सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज करेंगे. प्राइम मिनिस्टर हो गया, आपका जो पार्लियामेंट हो गया, असेंबली वगैरह, फिर ये जो है उसके मुताबिक काम करेंगे. लेकिन उसमें खुशनुदी, रजामंदी वो अल्लाह की देखेंगे कि अल्लाह किस चीज़ से खुश होता है.
एक पॉइंट ये भी आ गया। तो मतलब ये है कि जब भी आप आइन बनाएंगे, सॉवरेनिटी खुदा के पास होगी और वो खुदा के और रसूल के कवानीन के मुताबिक होगा। फिर है रिप्रेजेंटेशन। द स्टेट शैल एक्सरसाइज पावर्स एंड अथॉरिटी थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। के स्टेट पावर एक्सरसाइज करेगा चोजन पीपल के साथ। चोजन पीपल कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड मेंबर्स। उसके जरिए लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज की बात की, जिंदगी जो है मुसलमानों की आज़ाद होगी। एक बात, शरीयत लाजमी है, मुसलमान जिंदगी गुजारेंगे खुदा और रसूल के खुदा के हुक्म और रसूल की सुन्नत के मुताबिक, मतलब कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। माइनॉरिटीज़ क्या करेंगे? माइनॉरिटीज़ को अपनी रिलीजियस फ्रीडम हासिल होगी, ठीक है, और वो भी अपने इबादत कर सकते हैं, कोई पाबंदी उन पर भी नहीं है। सबको जो है फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक़ हैं, वो मिलेंगे। बुनियादी हकूक़ में जैसे एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, प्रॉपर्टी का हक, इक्वालिटी, इसी तरह बिलीव, वर्शिप, एसोसिएशन, ये सब कुछ जो है फंडामेंटल राइट्स में आते हैं एंड दे विल बी गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को जो है इंडिपेंडेंट रखा जाएगा, ठीक है। ये 4-5 ऐसी बातें हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन का हिस्सा है। अच्छा, ये क्यों है? तो जाहिरी बात है, इसके बारे में लियाकत अली खान खुद लिखता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन इन द लाइफ ऑफ दिस कंट्री नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस आर द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशंस आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। अहमियत इसकी यह है कि आज़ादी के बाद अगर इस नेशन ने या इस स्टेट ने या पाकिस्तान ने कुछ हासिल किया है अहमियत में, तो वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस हैं, ठीक। ये तो उसकी अहमियत। दूसरी बात यह है कि इसमें हर एक को, स्टेट्स को भी हकूक़ मिले, सूबों को भी हकूक़ मिल जाते हैं, माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा जाता है, मेजॉरिटी का भी ख्याल रखा जाता है, रिलीजन का भी ख्याल रखा जाता है, एंड मोर देन ऑल सॉवरेनिटी खुदा के पास है, एंड उससे भी ज़्यादा जो है शरीयत को जो है कायम किया गया। और साथ में इसमें जो मिडीवियलिज्म और मुल्लाइज़म, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कोशिश किया गया। चलो ये आगे चलकर ये 2 पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे। कोशिश किया गया कि ये थोड़ा सा मॉडर्न भी हो, ज्यादा मिडीवियल ना हो और ज्यादा जो है उस पर मुल्ला का असर ना हो। और ये 2 बातें थोड़ी खतरनाक हैं क्योंकि उस वक़्त भी इनका असर रसूख बहुत ज्यादा था, ठीक है, और यही वजह है कि इट हांटेड पाकिस्तान, इवन स्टिल दीज मुल्लाज आर हांटिंग पाकिस्तान। सारों का नहीं कह रहा हूँ, ऐसे शिद्दत पसंद मुल्लाज हैं जो पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 की तरफ आते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस इसकी होती है मार्च 23, 1956। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस मार्च 23। ये MCQs के लिए याद रखें, किसी भी पेपर में ये आ सकता है, ख़ासतौर पर स्क्रीनिंग टेस्ट हो, CSS PMS, ये किधर भी आ सकता है। आप लोग वैसे भी टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेट्स जो है 4-5 डेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से, बस यही याद रखें, एक ज़रूर आता है उसमें। मार्च 23, 1956। अच्छा, इसकी जो खसूसियात हैं, एक तो ये है कि इट इज़ रिटन इन नेचर, रिटन हो गया, सब कुछ लिखा गया है। फिर है इस्लामिक इन नेचर, इसमें इस्लाम को जो है स्टेट रिलीजन भी करार दिया गया, ठीक। यूनिकैमरल भी है। यूनिकैमरल का मतलब ये है कि इसमें सेनेट नहीं है, एक ही असम्बली होगी। अपर हाउस लोअर हाउस वाली कहानी, बस एक असम्बली होगी, ठीक है। सेंट्रल असम्बली कह ले, नेशनल असम्बली कह ले, लेकिन सेनेट नहीं होगा, यूनिकैमरल था। साथ में जो है जो प्रोविंसेस होंगे
वो भी यूनिकैमरल होंगे। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें वजीर आजम साहब होते हैं, वही एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक कैबिनेट पूरी हुकूमत को चलाता है और प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द नेशनल असेंबली। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी ख्याल रखा गया कि इसमें जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और ये सब अलहदा अलहदा हो गए। डिवीजन ऑफ पावर्स, सेंटर को अपने इख्तियारात दे दिए और सूबों को अपने इख्तियारात दे दिए, ऑटोनमस स्टेटस दे दिया सूबों को। ठीक है, अब ये बड़ी खूबसूरत बात है और आप इसको पेपर में जब लिखेंगे तो आप लिखें कि ये जो है दिस कॉन्स्टिट्यूशन 1956 इज फेडरल इन नेचर। ये क्या है? फेडरल है। और फिर फेडरल का मतलब भी यही है कि उसमें एक सेंटर होता है और सूबे होते हैं। सेंटर के अपने इख्तियारात होते हैं, सूबों के अपने इख्तियारात होते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सही। एडल्ट फ्रेंचाइज का भी हक दिया गया, सबको वोट का हक मिला कि बस आप वोट दे सकते हैं, आपकी उम्र 18 साल है तो जाएं वोट दे लें, हिस्सा ले लें इलेक्शन में। फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए और लैंग्वेजेस जो है बंगाली और उर्दू ये हमारे नेशनल लैंग्वेजेस थे और इंग्लिश जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज था। और कंट्री का नाम जो है वो रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक तो रिपब्लिक होता है ना, एक इस्लामिक रिपब्लिक होता है। अब इस्लामिक रिपब्लिक का फायदा क्या हुआ? इसको फायदा ये हुआ कि आपका प्राइम मिनिस्टर या आपका जो सदर होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, दैट विल बी अ मुस्लिम। नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी अ प्रेसिडेंट बिकॉज द नेम ऑफ द कंट्री इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो जब एक इस्लामिक स्टेट हो तो वहां पर कोई नॉन मुस्लिम जो है सदर नहीं बन सकता। सही। तो वही 18 साल हो जाती है ना एडल्ट फॉर वोट। अच्छा, लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथी इसलिए है कि इसमें 234 आर्टिकल्स हैं, 13 पार्ट्स हैं और 6 जो है इसके शेड्यूल्स हैं। इसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में समझा दूं, जिस तरह आपके पास एक बुक होता है, उस बुक को पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर हर एक पार्ट में 2-2, 3-3 चैप्टर्स होते हैं, वो शेड्यूल्स हो जाएंगे। और फिर जो है उसके जो कंटेंट्स आते हैं जिसमें हर एक चैप्टर के अपने कंटेंट्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ उसमें होता है, तो वो आर्टिकल्स बन जाएंगे। तो आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल्स, 234 आर्टिकल्स, 13 पार्ट्स और 6 शेड्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको लेंथी भी कहा गया। ये पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है, या हम इसको कहते हैं सेमी रिजिड। सेमी रिजिड इतना मुश्किल भी नहीं है अमेंडमेंट और इतना सख्त भी नहीं है, तो सेमी रिजिड है अमेंडमेंट उसमें। सही। तो ये चंद ऐसी बातें हैं जो कि इस आइन को खूबसूरत आइन बनाती हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियारात ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसके पास अपना एक कैबिनेट होता है और उसी के ज़रिए इस हुकूमत को चलाया जाता है। अब आते हैं कि ये फेल क्यों हुआ, 1956 का आइन फेल क्यों हुआ। एक वजह तो ये थी, चलो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में भी ले जाता हूँ। 1956 का आइन जब बन रहा था तो इसकी कहानी शुरू होती है 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। 49 से लेकर 56 तक, या चलो 1947 से लेते हैं। 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और इनको पहला आइन मिलता है, एक छोटा सा, इतना सा छोटा सा किताबचा जो है, बुकलेट, वो उसको मिलता है आफ्टर 9 इयर्स। अफसोस की बात है ना कि वो लोग जो ये कह रहे थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, हम बड़े काबिल लोग हैं, ये पॉलिटिशियंस आज़ादी मांग रहे थे, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि आज़ादी के बाद हम इसके साथ क्या करेंगे। मुल्क को तो चलाना भी है, उसको तो आइन भी लेना है। तो ये लोग इतने जो है, या ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करूँगा क्योंकि ऐसा ना हो आप में कुछ लोग थोड़े से सिंपल टाइप के हों तो वो सब कुछ फिर लिखता है, टीचर के मुंह से गाली भी निकले तो वो भी पेपर में लिख देता है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो आपने
एकेडमिक लैंग्वेज यूज करनी है, लेक ऑफ लीडरशिप हम कह सकते हैं कि इतना लेक ऑफ लीडरशिप था, इसके पास लीडरशिप थी ही नहीं कि वो आइन को फ्रेम कर सके। चलो करते 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 इसमें 9 साल लगे, 1947 से लेकर 1956 तक 9 साल लगे एक आइन बनाने में। बड़ी हैरानगी की बात है ना। चलो कोई बात नहीं, आइन तो बना लिया। अब जब आइन बना लिया, इन लोगों के पास इतनी लीडरशिप नहीं थी। वाई 12 to 9 ईयर, बस यही बता रहा हूं फरहान दाजेब, यही बता रहा हूं। वजह ये थी फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, कि जो भी हुकूमत आती थी, ठीक है, आइन के मुताबिक काम ही नहीं कर रही थी। एक बात तो हम कह सकते हैं कि जो रियल इम्प्लीमेंटेशन, ऑनेस्टी और क्या क्या आपकी किताब में भी एक लफ्ज लिखा है सिंसेरिटी, वो नहीं थी इन लोगों में। और ये वैलिड पॉइंट है। बाकी भी पॉइंट्स हैं जैसे कि लेक ऑफ लीडरशिप हो गया, जैसे कि ये जो है थोड़ा सा पाकिस्तानी मेंटेलिटी के मुताबिक ही नहीं था। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें जो है हुकूमत या जो वज़रा है 19 ये अब्रोगेट हुआ 1958 में, 2 साल बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। इन 2 सालों में ये पॉलिटिशियन एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे और उनके लड़ने झगड़ने ने और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने डिक्टेटरशिप या मार्शल लॉ को जन्म दिया। ठीक है, लेकिन 2 बड़े आर्गुमेंट्स हैं जो आप लोग कर सकते हैं। एक ये है कि इट वॉज नॉट गिवन अ प्रॉपर टाइम एंड ट्रायल टू सी इट्स इफेक्टिवनेस। इसकी जो असर है या इफेक्टिवनेस है या जो अच्छाई है, 2 सालों में आपके आइन का पता नहीं चल सकती। और दूसरी बड़ी वजह लेक ऑफ लीडरशिप और लेक ऑफ ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस। वो इतने सिंसेर नहीं थे और ऑनेस्ट भी नहीं थे अपने आइन के साथ। और जो आखिरी पॉइंट बताया ये ज्यादा वैलिड है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। एनीहाउ यहां पर इसकी कहानी खत्म हो जाती है और फिर जो है इसकी वजह से मार्शल लॉ लगाया जाता है 1958 में। और फिर मार्शल लॉ जब लगाया जाता है तो अयूब खान का दौर शुरू हो जाता है और फिर अयूब खान जो है 1962 का आइन जो है बनाता है। अब 1962 के आइन की भी चंद खसूसियात आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, वो भी इजी हैं और उसी के साथ कंपेयर भी कर लेता हूँ आपके के लिए, ताकि आप लोगों का एक क्वेश्चन भी हल हो सके। अगर क्वेश्चन आ जाए 1956 और 1962 के आइन में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, उसको डिस्कस करें तो ये आंसर भी आपको अभी मिल जाएगा। 1956 का आइन भी रिटन है, ये आइन भी रिटन है, ये तो सिमिलरिटीज़ हैं। डिफरेंस क्या है रिटन में? उसमें 234 आर्टिकल्स हैं, इसमें 250 आर्टिकल्स हैं। वहाँ पर जो है 6 शेड्यूल्स हैं, यहाँ पर 5 शेड्यूल्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी तो वहाँ पर सेमी रिजिड है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी इसने ज़्यादा रखी है। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और फिर 2/3 मेजॉरिटी भी एक मजाक है। अयूब खान सदर था, ठीक है, और सदर शहजादा जो है इतना पावरफुल बन गया था उस वक़्त, वो तो ताहिर डिक्टेटर था लेकिन ख़ुद को सदर का नाम दिया ताकि दुनिया को जो है इसकी जो हुकूमत है वो डेमोक्रेसी लगे। अदरवाइज इवन इस किताब में भी लिखा है कि उसने अपने आप को इतने इख्तियारात दे दिए थे कॉन्स्टिट्यूशनली दैट ही वाज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। अमेरिका के सदर के पास भी इतने इख्तियारात नहीं होते थे जितने अयूब खान के पास होते थे। तो मतलब बराबर डिक्टेटर था, बराबर, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एनी हाउ आप पेपर में पॉलिटिकल साइंस में उसको डिक्टेटर ना कहें, ये ना कहें, बस आप अपनी एकेडमिक डिस्कशन करें। आप सिर्फ इतना लिखें कि उसने अपने आप को ज़्यादा इख्तियारात दिए थे, ठीक है, और डिक्टेटर जितने इख्तियारात दिए थे। और आप उसको फिर कंपेयर कर ले अमेरिका की सदर के साथ। आगे चलकर मिसाल भी दूंगा कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं।
अच्छा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो भी फेडरल था, ये भी फेडरल है, ठीक है। वहां पर भी सेंटर और सूबे हैं, यहां पर भी सेंटर और सूबे हैं, लेकिन यहां पर 1962 के आईन ने, चूंकि ये एक मिलिट्री रिजीम था, सूबों को इतने इख्तियारात या अटानमी बजाहिर तो दी गई थी लेकिन प्रैक्टिकली नहीं थी। अच्छा, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1962 का जो आईन है दैट इज प्रेसिडेंशियल, 1956 का जो आईन है दैट इज पार्लियामेंट्री। ये पॉइंट जो है ये वैलिड है बिल्कुल, ये बिल्कुल टॉप में लिखे। जब भी आपने पेपर में कुछ लिखना है तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से शुरू करें, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फिर लिखे कि 1962 में प्रेसिडेंशियल है और 1956 में ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इसमें इख्तियारात वजीर आजम के पास होते हैं, उसके कैबिनेट के पास होते हैं, एंड देयर इज अ क्लोज इंटीमेट बिटवीन द प्रेसिडेंट और द एग्जीक्यूटिव विद दैट ऑफ द असेंबली और लेजिस्लेचर, राइट, या पार्लियामेंट। और आप बात करें फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, सो देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स, देयर इज नो इंटीमेट कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट। सही। फिर थोड़ा सा एक और भी वो बता दूं कि जब आपके पास सदारती निज़ाम हो तो सदर कहीं से भी अपना कैबिनेट बना सकता है, और जब आपके पास पार्लियामेंट्री निज़ाम हो तो वहां पर कैबिनेट सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से उठा सकता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी एक डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट लिखे पेपर में, हेडिंग दे रहे, और उसके नीचे फिर लिखे कि 1962 में चूंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम था तो सदर अपने लिए अपना कैबिनेट आउटसाइड द पार्लियामेंट बना सकता था, एज कंपेयर टू द 1956 which was a parliamentary form of government where prime minister selects his own cabinet or ministerial staff from the parliament। ठीक है, तो ये बातें आप लोग फिर वहां पर लिख सकते हैं। अच्छा, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो 1962 के आईन में इलेक्टोरल कॉलेज था। इलेक्टोरल कॉलेज कौन सा होता है? इसने बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की। अच्छा, ये भी आप लोग पॉइंट में लिखें कि देयर इज बेसिक डेमोक्रेसी इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ऑन द अदर हैंड 1956 डज नॉट हैव एनी बेसिक डेमोक्रेसी। वहां पर बेसिक डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ही नहीं। बेसिक डेमोक्रेसी क्या है ये भी थोड़ा सा बता दूं। अयूब खान को सदर बनना था और सदर बनने के लिए उसे वोट चाहिए थे, तो इसने कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान को तो नहीं खरीद सकता कि बस भाई मुझे वोट दे रहे, ना मैं पूरे पाकिस्तान को डरा सकता हूं कि मुझे वोट दे रहे। तो उसने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की, नाम दिया बेसिक डेमोक्रेसी। उसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि पूरे पाकिस्तान से 80,000 लोग जो काउंसलर और ये नाजिम और इस टाइप के होते हैं, लोग उनको वोट देंगे, ये लोगों को इलेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे 80,000। फिर यही 80,000 जो है सदर पाकिस्तान को वोट देंगे। अब 80,000 लोगों को आप डरा भी सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, और आप उसको खुश भी कर सकते हैं कि बस मुझे वोट दे रहे, वो आपको वोट दे देगा। तो बेसिक डेमोक्रेसी इसने अपने लिए इंट्रोड्यूस की ताकि ये सदर पाकिस्तान बन सके। और बेसिक डेमोक्रेसी जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 1962 के आईन में मिलती है, 1956 के आईन में नहीं मिलती, इवन 1973 के आईन में भी नहीं। तो ये एक नई चीज इसने इंट्रोड्यूस की। साथ में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, और यही इंडिपेंडेंस जो है 1956 के आईन में भी थी। ठीक है, एनी हाउ जो इंडिपेंडेंस अमेरिका में है जुडिशरी की, वो 1962 के आईन में नहीं है। सदर बिल्कुल सब कुछ, हर एक चीज को अपने कंट्रोल में लिए हुए था। लैंग्वेजेस की बात की जाए तो 1956 में भी उर्दू बंगाली जो है नेशनल लैंग्वेजेस थी, और 1962 में भी यही दो लैंग्वेजेस थी हमारी, क्या कहते हैं, 1956 में भी यही हमारी नेशनल लैंग्वेजेस थी। इंग्लिश वाज ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा,
एक और बात भी बता दूं जो खूबसूरत बात है, कैपिटल जो हमारा पहला कैपिटल था वो था कराची। 1962 में कराची का जो कैपिटल स्टेटस है वो उठाया और इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया। अच्छा, अभी आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूं कि वाई इस्लामाबाद वाज मेड द कैपिटल, के पाकिस्तान का जो ऑलरेडी पहला एक कैपिटल कराची था उसे छोड़कर या उसका स्टेटस लेकर इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया, क्यों बनाया? ये आप लोगों का एक रिसर्च होगा, आप इसको गूगल कर सकते हैं और ये आप लोगों का असाइनमेंट भी हो गया। ठीक है, कि इस्लामाबाद को क्यों कैपिटल बनाया गया। तो ये सारी बातें जो है 62 की हैं। अब 62 का आइन फेल क्यों हुआ, तो जाहिरी बात है, एक तो ये है कि इट वाज अ डिक्टेटरशिप इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इसने प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, बट इट वाज नॉट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अमेरिका, इट वाज नॉट अ ट्रू एंड प्योर डेमोक्रेसी। ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर या उसके साए तले जो है एक डिक्टेटरशिप थी। इट वाज वन मेन शो। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आप बनाते हैं तो उसके लिए या रिफरेंडम किया जाता है, या उसके लिए कन्वेंशन किया जाता है, या उसके लिए जो है पार्लियामेंट से जो है तैयारी की जाती है और आप पूरे मुल्क को एतमाद में लेते हैं। लेकिन जब 1962 का आइन बना तो ये एक शख्स की ख्वाहिश थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाया जाए और तमाम के तमाम पावर सदर के पास हो, और वो शख्स कौन है? अयूब खान है। तो वन मैन शो था, तो इसलिए जो है इसका फेलियर दैट वाज सर्टन। एब्सेंस ऑफ चेक एंड बैलेंस, जो चेक एंड बैलेंस के सिस्टम का की बात मैंने अभी की, अमेरिका में भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर चेक एंड बैलेंस है, सदर को इम्पीच भी किया जा सकता है। ठीक है, अदलिया पर अपना चेक है, सेनेट पर अपना चेक है, सदर पर अपना चेक है, कांग्रेस पर अपना चेक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर अपना चेक है। लेकिन यहां पर तो एक सदर की शक्ल में डिक्टेटर बैठा हुआ था, तो जाहिरी बात है, तो आप उसको किस तरह जो है चेक एंड बैलेंस उस पर रख सकते हैं? वो तो अपने आप में जो है मजाजी खुदा, मजाजी मीन क्या, सूडू, थोड़ा सा मजाजी खुदा, नकली खुदा बन गया था। ठीक, लेक ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो सूबों को के पास इख्तियारात ही नहीं थे, आपने उसकी ऑटोनॉमी छीन ली थी, जिसकी वजह से वो आपसे नाराज थे। इस आइन के तहत कुछ पॉलिटिकल काजेस भी थी। पॉलिटिकल काजेस क्या थी कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया था कि जनाब आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, जैसे जिया ने किया, जैसे मुशर्रफ ने किया। जब भी डिक्टेटर आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज का बेड़ा गर्क कर देता है, तो यही लोग तो जाहिर बात है फिर आपके खिलाफ भी होंगे, और उसके जो पार्टी लोग हैं और जो डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले पाकिस्तानी हैं वो तो आपके खिलाफ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। ठीक, साथ में 1965 वॉर, जंग हुआ 1965 में, मुल्क की इकोनॉमी बैठ गई, सब कुछ खत्म हुआ। फिर जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी उठने लगी, और साथ में लोगों के दिल में जो है इसके लिए नफरत भी पैदा हुई, डिक्टेटर के लिए या अयूब खान के लिए। ये डिक्टेटर लफ्ज मैं यूज कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड एंड मेकिंग यूर कंसेप्ट क्लियर, और आप लोग जो है अब रफली उसके लिए डिक्टेटर या सख्त लहजा इस्तेमाल ना करें पेपर में, क्योंकि आपको पेपर में मार्क्स चाहिए। रिवोल्यूशनरी ना बने, पाकिस्तान को चेंज करने की कोशिश ना करें, बस जो है वो है, आपको मार्क्स चाहिए तो एकेडमिक लैंग्वेज लिखे। निगेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, बज़ाहिर तो लिखा था कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ द स्टेट, बज़ाहिर तो लिखा था कि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक होगा, लेकिन प्रैक्टिस में अयूब खान भी बता दूं, मुशर्रफ भी बता दूं, ये लिबरल थे अपनी अप्रोच में। ये इतना इस्लाम को जो है इंक्लिनेशन इनकी नहीं थी, जिया की फिर भी थी, वो तो बिल्कुल सेक्टेरियनिज्म और मुल्लाइज्म और सबको प्रमोट करता रहा। सुन्नी शिया की जो लड़ाई आज तक है तो वो उसी की देन है। ठीक है, ये मुल्ला को जो इतना एम्पावर किया गया कि वो आपको ये भी कह सकता है कि फला सफ़ीर निकाल लो और फला रख लो अपने मुल्क में, ये पावर जिया के दौर से पहले
मुल्ला के पास नहीं था, ये उसके बाद आया है। सही। तो इसमें क्या था कि प्रैक्टिकली इसने इस्लाम को फॉलो नहीं किया, जो कि पाकिस्तान की तो ज़्यादातर आबादी जो है दे हैव देयर इंक्लिनेशन टूवर्ड्स रिलीजन इस्लाम, तो वो आपको पसंद ही नहीं करेंगे। इमरान खान जैसा शख्स अगर आप लोग देख लें, जो कि एक माजी में आपने देखा है कि एक प्ले बॉय भी रह चुका है, एक आज़ाद ज़िंदगी भी गुजारी है उसने, मगरिब में भी पढ़ा है, ठीक है, और उसके स्कैंडल्स वगैरह भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर देखा जाए तो जैसे ये बैठ गया तो पहली बात इसने की रियासती मदीना की, और कल जो है या परसों उसने बात की कि जिना लोग इसलिए करते हैं क्योंकि औरतें लिबास कम पहनती हैं या गलत लिबास पहनती है, तो उल्टा जो है रेपिस्ट का साथ इसने दिया कि रेपर जो है इतना गुनाहगार नहीं है, या रेपिस्ट इतना गुनाहगार नहीं है जितना जो है वो लड़की गुनाहगार है जिसका रेप किया जाता है। तो अब एक ट्रेंड भी चल रहा है, उसको रेप अपोलोजिस्ट भी कहते हैं। रेप अपोलोजिस्ट वो शख्स जो कि रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करता है, पसंद करता है, उसका हामी हो। अब ये इसने आइडियली जो है ये तो डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तानी मेंटेलिटी के मुताबिक तो वो एक नेशनल हीरो बन गया इस बात से कि इसने सही बात की, पर्दे की बात की, इस्लाम की बात की, ये की वो की, और पूरा पाकिस्तान जो है इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। सही। अब उसे पता है कि इन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, अगर इनको मैं हकीकत बताऊंगा तो ये मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन झूठ मूठ के तस्बीर रखकर ये सब मुझे प्रमोट करेंगे और पसंद भी करेंगे। तो ये काम जो है अयूब ना कर सका, जिया ने फिर भी किया था। इसके बाद जो है पॉलिटिकल क्राइसिस में भी इजाफा हुआ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ये तो प्योर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था ही नहीं, तो लोगों के नज़र में प्रेसिडेंशियल सिस्टम अनपॉपुलर हो गया। प्रेसिडेंशियल डिक्टेटरशिप थी और सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओहो, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं, आज़ादी खत्म हो जाती है। सही। और यही कुछ उसके आइन में हुआ था। फंडामेंटल राइट्स इवन 1962 के आइन में थे ही नहीं, फिर बाद में इस पर जब फोर्स किया गया, जोर डाला गया, तब जाकर उसने कहा कि चलो चंद एक्सेप्शंस के साथ फंडामेंटल राइट्स को शामिल भी कर दो। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे वो आपकी किताब में भी हैं, उसको एक रीड दे रहे, सो यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। तो यही डिफरेंसेस है 1956 के 1962 के, यही चीज़ें आप लोगों की बुक में भी लिखी गई हैं, 2-3 दफ़ा लिखी गई है, तो आप भी उसको दोबारा पढ़ा करें, 2-3 दफ़ा पढ़ा करें, ताकि अच्छी तरह से आपकी जहन में बैठ जाएं ये सारी बातें। अब आते हैं 1973 के आइन को, और उसको फिर 1956 के आइन के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, 1956 और 1973 दोनों रिटर्न है, ये तो सिमिलरिटी आ गई। डिफरेंस कहाँ पर है? 1956 में 234 आर्टिकल्स हैं, 13 पार्ट्स हैं, 6 शेड्यूल हैं। 1973 में 280 आर्टिकल्स हैं, 12 पार्ट्स हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो प्रियम्बल में डाला गया, मतलब इंट्रोडक्शन में डाला गया 1956 में, और 1973 के आइन में भी इसको रखा गया, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2A उसमें इसको शामिल किया गया और इसको एक अलग चैप्टर बनाया गया। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो हमने पढ़ा कि 1956 जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिजिडिटी भी है, और यहाँ पर लिखा है कि 1973 के आइन जो है ये थोड़ा ज़्यादा रिजिड है। अगर चीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, जो सही तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करते हैं, वो 1973 के आइन को भी सीमी रिजिड कहते हैं। अगर आप लोग पेपर में 1973 के आइन को सीमी रिजिड लिख ले तो मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कोई नहीं काटेगा। अच्छा, नेम ऑफ कंट्री जो है 1956 में कहा गया कि पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक। 73 में भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया।
ठीक है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो 1956 में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और 1973 में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। फर्क किधर है? फर्क फिर है यूनिकैमरल और बाईकैमरल। 1956 का जो आइन था यूनिकैमरल था, मतलब उसमें सेनेट नहीं था। 1973 के आइन जो है ये बाईकैमरल है, उसमें 2 हाउसेस हैं। आपके पास अपर हाउस सेनेट भी है और नेशनल असेंबली लोअर हाउस भी है। फेडरल सिस्टम 1956 भी फेडरल था, सेंटर और प्रोविंसेस, और इसी तरह 1973 भी जो है वो भी था, क्या कहते हैं कि फेडरल है, उसमें भी सेंटर भी है और प्रोविंसेस भी हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दोनों में फंडामेंटल राइट्स है। इमरजेंसी प्रोविजंस भी दोनों में है, ठीक है। 1956 ने भी इमरजेंसी प्रोविजंस दे दिए थे एंड प्रेसिडेंट वाज ऑथराइज्ड, ठीक है, कि आप इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। इसी तरह 1973 के आइन में भी इमरजेंसी प्रोविजंस है एंड द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू प्रोक्लेम इमरजेंसी फॉर होल ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ। रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो जुडिशरी जो थी इंडिपेंडेंट थी इन 1956। यहाँ पर 1973 में भी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंस का मतलब ये भी है दैट जुडिशरी कैन डिफेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि वो इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे। साथ में रिट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये भी है, हमारे पास कुछ रिट्स हैं जो कि अदालतें खुद ले सकती हैं। उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं बाद में दूंगा, सिर्फ नाम सुन ले। हर्बियस कॉर्पस, रिट ऑफ मेंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ कोवरंटो एंड रिट ऑफ सर्टियोरियाराई, ठीक है। और ये सब कुछ होता है, ये सब पावर्स किसके पास है? अदालत के पास है, जुडिशरी के पास है। किस आर्टिकल के तहत? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 199। ये 199 बस रटा लगा दे, बस अदालत की बात जब भी आए इसी को आप लोग लिखते रहें। सारे आर्टिकल्स जो 280 आर्टिकल्स आप याद नहीं कर सकते, लेकिन चंद आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि मशहूर हैं, जैसे 8 अमेंडमेंट हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 8 हो गया, 199 हो गया, 62, 63, ठीक है। और साथ में आप लोगों के पास अगर रिलेटेड चंद चीज़ें हैं तो अगर आपका ताल्लुक फाटा से है तो उसके आइन याद रखें। ये रिट फरहान दाजेब, थोड़ा सा खुद भी जो है उसको गूगल कर लें ठीक है। अब आपको ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है दायरे इख्तियार, और रिट का मतलब जो अब मुझे आई डोंट नो एग्जैक्टली इट्स उर्दू मीनिंग, इसकी उर्दू क्या होगी, अगर किसी को पता है तो लिख ले कि ये कहाँ पर अपना रिट, उसका दायरा इख्तियार या पावर जो है इस्तेमाल कर सकता है। जुडिशरी जो पावर होता है, रिट, जैसे स्टेट का एक रिट होता है, जुडिशरी का भी होता है रिट ऑफ द स्टेट एंड रिट ऑफ द जुडिशरी। आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली इट्स उर्दू और पश्तो मीनिंग, सो इफ एनीवन नोज काइंडली हेल्प हर। और खुद भी आप थोड़ा सा गूगल किया करें चीज़ों को, ये मीनिंग वगैरह के लिहाज से। अच्छा, रूल ऑफ लॉ की बात करें तो 1956 में भी रूल ऑफ लॉ था, और कहा कि हर एक शख्स को जो है लिबर्टी भी हासिल है एंड एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। और जब बात हम करते हैं 1973 की तो उसमें भी लोगों को लिबर्टी भी दी गई है और एवरीवन शुड बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग्स विद लॉ, कि हर एक शख्स को कानून के मुताबिक जो है ट्रीट किया जाएगा। इस्लामिक प्रोविजंस की बात करें तो जैसे मैंने कहा, ये तो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी हैं कि शरीयत ही सब कुछ है, मतलब कुरान और सुन्नत के जो भी कानून आप बनाते हैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। जब आईन भी बनाते हैं तो वो भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। कोई चीज़ आप ऐसी नहीं बना सकते जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो ऑलरेडी माशरे में चल रहे हैं,
उसको भी कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक कर दिया जाए। अच्छा, और ये 1956 में भी था और 1973 में भी है। अच्छा, नेशनल लैंग्वेजेस की बात करें तो नेशनल लैंग्वेजेस हमारे उर्दू 1956 में 2 थे, उर्दू और बंगाली। 1973 में सिर्फ उर्दू और इंग्लिश फिर ऑफिशियल लैंग्वेज। सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है, दोनों के लिए है। अच्छा, तो ये चंद पावर्स जो है साथ में मैंने आपको 1973 भी पढ़ा दिया, 1956 के साथ कंपैरिजन भी कर ली। आप इसी को उठाकर 1962 के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो इट्स इनफ फॉर टुडे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट इसी चैप्टर से दे देता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का चैप्टर है, आपके बुक में है, ठीक है, बिल्कुल आखिरी चैप्टर है, और इसी से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। ये बात अपनी जहन में याद रखें। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी आएगा और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अभी तक जितने भी आप लोग पेपर्स उठा ले, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अगर 1-2 दिन इस चैप्टर ने ले लिए आपसे तो कोई बड़ी गुनाह नहीं है, ठीक है। चंद चीज़ें इसी चैप्टर में है, वो है कि RCO क्या है, LFO क्या है, ठीक है, और वो छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें आते हैं कि शॉर्ट नोट्स RCO पर लेके, लीगल फ्रेमवर्क आर्डर में लेके, या यहया का दौर के साथा उसने क्या किया, मुशर्रफ ने क्या किया, ठीक है, और आइन जो कि अब्रोगेट हुआ था 1962 का 1969 में, तो इसको रिवाइवल किया गया, ठीक है, तो वो किस तरह किया गया। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आप लोगों का असाइनमेंट हो गया, पढ़ ले, समझ आई तो ठीक, नहीं आई तो फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, पेजेस नंबर भी बता दूं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ बड़े फिलासफर्स टाइप हैं, उनको पेज भी पता नहीं होता, बुक तो दूर की बात है, मेरे ख्याल में किसी के पास होगा भी नहीं। 650 से लेकर आपकी जो ये चैप्टर है 650 से शुरू हो जाता है और ये फिर ख़त्म होगा तकरीबन, जितना भी है उससे आगे चलते रहे। ये 10-15 पेजेस होंगे और आपने इसको 2-3 दफ़ा पढ़ना है। शुमाइला सरवर, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय SL खेले, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स आए हैं और जो मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं और बुक का पता नहीं है, तो काइंडली अपने जो सीनियर मेंबर्स हैं जैसे मीना गुलाले, अनफाल गुल, फरहानदा ज़ेब, उनसे पूछा करें बुक्स के बारे में। इन लोगों ने ख़रीदा भी है, आपको पिक्चर भी साथ में मिल जाएगा, बुक्स भी अगर PDF में है तो शेयर कर लेंगे, नहीं तो ख़रीद ले अपने लिए। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो बस ठीक है, नहीं तो अनाउंसमेंट पर मैंने एक पेज भी डाला हुआ है, वहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स।